Hello students. So today's our first topic is collision. So what is the meaning of collision? The collision means interaction between two bodies. Collision means interaction between two bodies, or in place of body we can write particles. So collision means interaction between the two bodies or two particles is said to be collision. And due to that collision, the magnitude and direction of velocity of these colliding bodies change is said to be collision. Means when two body collides, due to that collision their velocity, magnitude and direction changes. So we discuss here what is collision. So collision means interaction between the two bodies. Due to that interaction, the direction of the velocity and the magnitude changes. So what is the meaning of collision? There is a two bodies. We say that this is first body of mass m and this is a second body of mass m2. This is of m1 and another is m2. It is moving with velocity u1 and it is moving with velocity u2. And these two body are collide at that point. We say that here कि u1 is greater than u2, कि जो आपका u1 है वो u से बड़ा है. अगर u1 u से बड़ा है and moving in straight line, कि ये दोनों बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है one after the another, so definitely they collide at one point. So after that collision, this body and this body, this is of mass m1 and this is of mass m2, it moving with velocity v1 and it is moving with velocity v2. So due to that collision their velocity changes. Clear? And this is said to be collision. इसको हम collision कहते हैं. Next we will discuss type of collision. Type of collision. अब collision के कितने type है? The collision is of three type. So one by one we will discuss with an example. कि what are the various type of collision? The first collision is perfectly elastic collision. Perfectly elastic collision, कि जो आपका पहला है वो है आपका perfectly elastic collision. अब what is the meaning of perfectly elastic collision? कि perfectly elastic collision से आप क्या समझते हो? कि if two colliding body collides and due to that collision their velocity, magnitude and direction changes, but a collision is said to be perfectly elastic. A collision is said to be perfectly elastic if before and after the collision, first point, momentum remain same, and second point, kinetic energy also remain same. What is the meaning of this? A collision is said to be perfectly elastic if after the collision and before the collision. Means collision से पहले और collision के बाद अगर बॉडी की, दोनों बॉडी की मोमेंटम क्या होगी? सेम होगी. Means the momentum of the body before a collision and after collision is same, and also kinetic energy is also same. अब इसका मतलब ये है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बॉडी की मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सेम है. मींस जो बॉडी की मोमेंटम है और जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है दैट इज कंजर्व. सो इन द शॉर्ट टर्म वी विल राइट हियर इफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी conserved in an collision, in a
collision so that collision is said to be perfectly elastic collision. मीन्स जो बॉडी की मोमेंटम है बिफोर, जो बॉडी की मोमेंटम है और जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अगर वो कंजर्व हो जाती है, कंजर्व मीन्स बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या रहती है, सेम रहती है, तो उस तरह के कोलिजन को हम बोल लेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. तो ये था आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. नेक्स्ट आपका आएगा इन इलास्टिक कोलिजन, सेकंड. नेक्स्ट इज नंबर 2 इन इलास्टिक कोलिजन. अब ये इन इलास्टिक कोलिजन क्या है? अब जो आपका इन इलास्टिक कोलिजन होगा, इन दैट केस मोमेंटम is conserved but kinetic energy does not conserved. अब इसको हम लिखेंगे कैसे कि what is an elastic collision? A collision is said to be inelastic. A collision is said to be inelastic if the linear moment of the system remain conserved but kinetic energy not conserved. मीन्स अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती. कंजर्व का मतलब है कि अगर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम नहीं है तो उस कोलिजन को हम इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे. नाउ विद वन डायग्राम वी विल डिस्कस इट कि हाउ दीज टू कोलिजन डिफर विद ईच अदर. सो हियर वी विल प्लॉट टू डायग्राम्स. यहां पे मैं आपके लिए 2 डायग्राम ड्रॉ करता हूं. फर्स्ट इज फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, कि पहला जो आपका डायग्राम है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए. अब मैं यहां पे क्या देखता हूं कि देर इज अ ऑब्जेक्ट और अ बॉल विच इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, जो एक हाइट से फॉल कर रही है. वी से दैट इट इज फॉलिंग एट दिस पॉइंट. क्लियर? एंड दिस इज हाइट h. आफ्टर द कोलाइडिंग विद द एनी सरफेस, इफ दैट बॉडी रिगेन द सेम हाइट, मीन्स दिस इज ऑल्सो h. सो दिस इज योर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. मीन्स यहां पे क्या था, जब बॉडी हाइट पे थी तो बेटा उसकी थी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? जब बॉडी नीचे की तरफ आई, दिस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी. और जब इस ग्राउंड को उसने हिट किया, अगेन दैट बॉडी राइज टू सम हाइट. मीन्स जितनी यहां पे काइनेटिक एनर्जी थी आने से पहले, उतनी काइनेटिक एनर्जी यहां पे जाने के बाद यहां पे फिर से पोटेंशियल एनर्जी आ गई. मीन्स बॉडी ने सेम हाइट गेन कर ली आफ्टर कोलिजन with the surface. So this is a perfectly elastic collision. But in case of inelastic collision, if the body is falling from a height, ये कोई body है, ये falling height कर रही है h से, we say that it is h1. After colliding with the ground or any surface, it doesn't get as much as height in previous case, and this height is h2. Clear? अब यहां पे क्या हमने देखा कि जो h1 है वो ग्रेटर था h2 से. क्लियर? जो आपका H1 है वो H2 से ग्रेटर था. इसका मतलब यहां पे हुआ कि जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी थी दैट इज ऑब्जर्व बाय द सरफेस, और सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इनटू हीट एंड साउंड, एंड ड्यू टू विच द बॉडी डिडंट गेट एज मच एज हाइट इन द प्रीवियस केस. यहां पे H1 थी लेकिन यहां पे H2 थी. इस केस में क्या था कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी काइनेटिक एनर्जी बाद में थी. लेकिन इस केस में क्या हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी थी वो आपकी हीट और साउंड में कन्वर्ट हो गई. तो दिस देयर आर द टू डायग्राम. दिस डायग्राम इज फॉर परफेक्टली, दिस इज फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एंड दिस इज फॉर इन इलास्टिक कोलिजन. क्लियर? तो इन 2 डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या है और इन इलास्टिक कोलिजन क्या है. So next we will discuss about the perfectly inelastic collision. कि जो आपका perfectly inelastic, there is a difference. One is perfectly elastic. Next we will discuss perfectly inelastic. So जो perfectly inelastic collision है, that collision is how that collision different from these 2 type of collision. So now we will start perfectly inelastic collision. अब perfectly inelastic collision क्या है?
और ये इन इलास्टिक से कैसे डिफरेंट है। अब पहले हम इन इलास्टिक को समझते हैं क्या है कि देयर आर द टू बॉडीज, दिस इज फर्स्ट बॉडी हैविंग मास m1 एंड वेलोसिटी u1, दिस इज सेकंड बॉडी, दिस इज मास m2 एंड वेलोसिटी u2, both are moving in the straight line such that u1 is greater than u2. So at that this point they collide with each other. After this collision these two body again start moving with velocity v1 and v2 having mass m1 and m2. So in that case जो इनकी मोमेंटम थी वो कंजर्व हुई, लेकिन जो इनकी काइनेटिक एनर्जी थी दैट इज नॉट कंजर्व. सो दिस इज डायग्राम फॉर इन इलास्टिक कोलिजन. ये आपका था इन इलास्टिक के लिए. अब परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा, व्हाट हैपन इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में हम क्या देखेंगे, फिर से हम एक डायग्राम समझेंगे इसके साथ. इन दैट केस अगेन देयर इज अ टू बॉडी, दिस इज फर्स्ट बॉडी हैविंग मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1, दिस इज सेकंड बॉडी हैविंग मास m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2. अगेन u1 इज ग्रेटर देन u2, कि जो u1 है वो u2 से ग्रेटर है. एंड दीज टू बॉडी कोलाइड एट दैट पॉइंट, ये दोनों बॉडी कोलाइड कर गई. बट आफ्टर द कोलिजन दे डिडंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, मींस दीज टू बॉडी स्टिक विद ईच अदर. दीज टू बॉडी स्टिक विद ईच अदर मींस पहले दोनों बॉडी अलग अलग मूव कर रही थी, लेकिन कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडी अलग नहीं हुई है, ये दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ चिपक गई, मतलब स्टिक कर गई. तो इस कोलिजन को हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. अब जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि आप कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक इफ द टू बॉडी आफ्टर द कोलिजन स्टिक विद ईच अदर एंड आल्सो the momentum of the body is conserved but kinetic energy of the bodies is didn't conserve, कि जो kinetic energy है वो कंजर्व नहीं होगी, लेकिन जो इनकी मोमेंटम है वो कंजर्व होगी. अब दोनों में डिफरेंस क्या है इन इलास्टिक में और परफेक्टली इन इलास्टिक में. जो डिफरेंस है बेटा इन इलास्टिक के अंदर कि दो बॉडी मूव करेंगी, कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद दे मूव सेपरेटली विद वेलोसिटी v1 एंड v2. बट इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन दोनों बॉडी अलग अलग मूव कर रही थी, दोनों का कोलिजन हुआ, लेकिन कोलिजन के बाद दे डिडंट मूव सेपरेटली, वो सेपरेटली मूव नहीं कर रही हैं, दे आर स्टिक विद ईच अदर. एंड इफ देयर इज वेलोसिटी u1 हियर इज वेलोसिटी u2, सो दीज टू बॉडी आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, वी से दैट v, ये दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं. तो इस तरह के कोलिजन को हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. सो दिस इज योर थ्री टाइप ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. अब इसको हम एक और एग्जांपल समझ सकते हैं. क्या है वो एग्जांपल, इफ वी से दैट कि ये आपकी कोई बुलेट है, क्लियर, ये इस तरफ मूव कर रही है और यहां पे कोई आपका एक वुडन ब्लॉक है, क्लियर, ये बुलेट थी, ये वुडन ब्लॉक था. अब क्या हुआ कि दीज टू कोलाइड विद ईच अदर, और ये जो ब्लॉक के अंदर अगर आपकी बुलेट ने पेनिट्रेट नहीं किया, मींस ये बॉडी से बाहर नहीं निकली, ये इसके अंदर ही ट्रैप हो गई. तो इस केस में क्या था, पहले ये दो बॉडी थी, लेकिन इस केस में आके दीज टू बॉडी स्टिक विद ईच अदर. सो दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. दिस इज योर 5 मार्क्स क्वेश्चन. Derive the derivation for the velocities of the body after the collision for perfectly inelastic collision in one dimension. आपके पास दो तरह होगा, 2 dimensional होगा, एक 1 dimensional होगा. तो पहले हम 1 dimensional को डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द 2 dimensional elastic collision. तो हम स्टार्ट करते हैं. इलास्टिक 1 dimensional collision मींस 1 dimensional elastic collision. अब 1 dimension की बात यहां पे है, we will discuss only with 1 dimensional. Here we will discuss the horizontal motion. So first of all we will consider here कि there are the two bodies. यहाँ पे आपके पास दो bodies हैं. First of all we say that this is a body A. ये आपकी body A है, clear, and this is a body B. Let us consider that there are two body A and B having mass m1 and m2 moving with velocity u1 and u2 in the same direction on the straight path, one after the another. And we say that कि u1 is greater than u2. तो if u1 आपका u2 से greater होगा तो we know that कि these two body collide with each other.
तो एट आफ्टर सम टाइम दीज टू बॉडी कोलाइड विद ईच अदर, is at this point these body to collide with each other. After that collision, these two body again start moving on the straight path, horizontal path. This is your body A, this is your body B, and this is having mass m1 and this is having mass m2. After the collision, the body A is moving with velocity v1 and this body is moving with velocity v2. So in that case we will discuss that कि the collision is perfectly, जो आपका elastic है, कि जो collision है आपका वो है elastic. Elastic means perfectly elastic. If collision is perfectly elastic, we have discussed in the previous topic कि if collision is perfectly elastic, the momentum and जो आपकी क्या थी काइनेटिक एनर्जी थी, दैट इज कंजर्व्ड, वो आपकी हो गई कंजर्व्ड. मींस अगर आपका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो आपकी मोमेंटम और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व हो जाएगी. तो अगर आपकी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, मींस मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ द सिस्टम. सिमिलरली जो काइनेटिक एनर्जी है कोलिजन से पहले और जो काइनेटिक एनर्जी है कोलिजन के बाद, वो आपकी क्या होगी, सेम होगी. तो अगर ये पॉइंट यहां पे फॉलो हो रहे हैं तो फर्स्ट वी विल फाइंड हियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन. मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन. अब यहां पे आपकी दो बॉडी हैं, एक है बॉडी ए, एक है बॉडी बी. तो बॉडी ए की मोमेंटम होगी m1u1 और बॉडी बी की होगी m2u2. तो जो ये सिस्टम है, पहले इसके अंदर दो बॉडीज हैं, तो इन दोनों की मोमेंटम क्या होगी, तो बिफोर कोलिजन जो आपकी मोमेंटम होगी वो बनेगी आपकी m1u1 प्लस m2u2. तो दिस इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन. सिमिलरली मोमेंटम ऑफ द सिस्टम here is after the collision. So again जो आपकी collision के बाद फिर से यहां पे दो बॉडी हैं A और B, और जो A है उसकी वेलोसिटी है v1 और B की वेलोसिटी है v2. A का मास है m1 और B का मास है m2. So if we find the momentum of these body, its momentum comes out to be m1 v1 and its momentum comes out to be m2 v2. So what is the combined momentum of this system A and B body? The combined momentum is comes out to be m1 v1 plus m2 v2. तो ये आपकी आ गई दोनों बॉडीज की मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. तो अगर दोनों बॉडी की मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, हम कह रहे हैं कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है. तो अगर मोमेंटम कंजर्व होगी, द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगी, सेम होगी. मींस वी कैन से दैट कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन. सो इफ मोमेंटम इज कंजर्व, सो वी कैन राइट हियर m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. ये हमने क्यों लिखा, ये हमने इसलिए लिखा बिकॉज कोलिजन जो आपका है दैट इज एलास्टिक. अगर कोलिजन आपका एलास्टिक होगा तो आपकी जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगी. कंजर्व का मीनिंग मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी रीअरेंजमेंट करेंगे. हमने रीअरेंजमेंट क्या करनी है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो बॉडीज आपकी सेम मास की हैं उनको हम एक साइड इकट्ठा करेंगे और जो डिफरेंट मास की है उनको हम एक साइड इकट्ठा करेंगे. तो दिस इज मास m1 एंड हियर इज मास m1 आल्सो. So we will take this on that side and this quantity on that side. So here comes out to be m1u1 minus m1v1 is equal to, here comes out to be m2v2 minus m2u2. अब अगर मैं यहां से आपका m1 कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे आपका आ गया u1 माइनस v1 और यहां से m2 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे आपका आ गया v2 माइनस u2. क्लियर. सो इसकी हमारी यहां पे आ गई अरेंजमेंट. अब इसके बाद ये आपकी, अगर हम इसको कह देते हैं कि दिस इज योर
दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमने क्या कहा था कि अगर कोलिजन आपका इलास्टिक है, सो इफ कोलिजन इज इलास्टिक, सो वी कैन से दैट देयर काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व। सो आल्सो वी विल फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द बॉडीज। तो सबसे पहले मैं निकाल लूंगा यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए एंड बी बिफोर कोलिजन। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी बॉडी ए और बी की बिफोर कोलिजन, वो क्या होगी? तो वेरी सिंपल कि जो काइनेटिक एनर्जी है, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्केयर। तो जो बॉडी ए है उसका मास m1 है कोलिजन से पहले, और उसकी वेलोसिटी है u1, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडीज कम्स आउट टू बी हाफ m1 u1 स्केयर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी जो होगी बॉडी बी की, वो क्या होगी? तो वी नो दैट कि जो बॉडी बी है उसका मास है m2 और उसकी वेलोसिटी है u2, तो इट्स काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी हाफ m2 u2 का स्केयर। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए एंड बी बिफोर कोलिजन। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी होगी सिस्टम की बिफोर कोलिजन, वो क्या होगी? तो वो होगी इन दोनों का सम। तो काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी हाफ m1 u1 स्केयर प्लस हाफ m2 u2 स्केयर। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। सिमिलरली विल फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो कोई मुश्किल नहीं निकालनी है, निकाल सकते हैं हम कि जो कोलिजन के बाद जो मास था वो m1 ही है, लेकिन वेलोसिटी v1 हो गई। इसका मास क्या था? m2 था, लेकिन वेलोसिटी क्या है? v2 है। तो मास तो सेम है, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हुई है। तो जो बॉडी ए है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी हो जाएगी हाफ m1 v1 स्केयर प्लस हाफ m2 v2 स्केयर। सो दिस इज योर kinetic energy before collision and this is your kinetic energy after collision। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो हमने कहा था कि जो आपकी किनेटिक एनर्जी है और आपकी जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगी। कंजर्व का मीनिंग है मोमेंटम एंड किनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या होंगी? इक्वल होंगी। आपकी है बिफोर कोलिजन किनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम और ये है आफ्टर कोलिजन। अगर किनेटिक एनर्जी कंजर्व है इसका मतलब ये दोनों की दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो वी कैन राइट हियर हाफ m1 u1 स्केयर प्लस हाफ m2 u2 स्केयर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्केयर प्लस हाफ m2 v2 स्केयर। क्यों कहा हमने? क्योंकि जो आपका ये कोलिजन है ये आपका कोलिजन था कौन सा? दैट इज इलास्टिक कोलिजन। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आपकी कंजर्व होगी। अब दोनों साइड से हमने हाफ को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। तो अगर दोनों साइड से हम हाफ कॉमन ले लेते हैं तो अब आपकी जो टर्म बचेगी आपके पास m1 u1 स्केयर प्लस m2 u2 स्केयर इज इक्वल टू m1 v1 स्केयर प्लस m2 v2 स्केयर। तो आपके पास ये टर्म बच गई। अब इसके बाद हमने फिर से क्या करना है? वी विल रीअरेंज की जो सेम मास वाली बॉडीज हैं उनको एक साइड लेके जाएंगे। तो m1 को हम इधर ले आएंगे और m2 को हम उधर ले जाएंगे। तो अब जब इनको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा m1 u1 का स्केयर माइनस m1 v1 का स्केयर इज इक्वल टू हेयर कम्स आउट टू बी m2 v2 का स्केयर माइनस m2 u2 का स्केयर। क्लियर? तो अगर मैं अंदर से यहां से m1 कॉमन ले लिया तो यहां बच गया आपका u1 का स्केयर माइनस v1 का स्केयर। इधर से m2 कॉमन लेता हूं, अंदर बच गया v2 का स्केयर माइनस u2 का स्केयर।
क्लियर, तो हम यहां रिजल्ट पे पहुंच गए। तो इसको अगर मैं नाम दे देता हूं कि दिस इज योर इक्वेशन थर्ड, ये आपकी इक्वेशन थर्ड है। क्लियर, तो इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 3/2, कि जो हमने इक्वेशन 3 निकाली थी और जो हमने इक्वेशन 2 निकाली थी उनको हमने डिवाइड कर। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 क्या थी अपनी, तो जो आपकी इक्वेशन 3 थी जो हमने लास्ट में लिखी है वो थी, और इक्वेशन 2 थी जो हमने पहले लिखी। तो जो इक्वेशन 3 है पहले उसको देख लेते हैं, व्हाट इज इक्वेशन 3। तो योर इक्वेशन 3 इज, दिस इज योर इक्वेशन 3, ये जो आपकी है ये आपकी इक्वेशन 3 है। तो इसको हमने लिखना है, व्हाट इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन इज m1 u1 स्केयर माइनस v1 स्केयर इज इक्वल टू m2, here is v2 square minus u2 square, this is your equation 3 is divided by equation 2। अब इक्वेशन 2 क्या थी आपकी, तो जो आपकी इक्वेशन 2 थी वो आपको बताते हैं कि क्या थी आपकी इक्वेशन 2। तो ये थी आपकी इक्वेशन 2। क्लियर, तो अब हम इसको देखते हैं कि व्हाट इज योर इक्वेशन 2। तो जो आपकी इक्वेशन 2 थी वो थी आपकी m1 v, यहां पे आपकी इक्वेशन है m1 u1 माइनस v1, फिर इज m2 v2 माइनस u2। तो ये आपकी थी दो इक्वेशन। क्लियर, अब हमने इनको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद इसको हमने सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर m1 कैंसिल विद m1, m2 कैंसिल विद m2। अगर मैं यहां से ध्यान से देखता हूं, सो एट दिस पॉइंट ये आपका है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी क्या थी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो जब इस आइडेंटिटी को ओपन करूंगा तो आपका यहां पे बनेगा u1 माइनस v1 और यहां पे आएगा u1 प्लस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस v1। सिमिलरली here आएगा आपका v2 माइनस u2 एंड here कम आउट टू बी v2 प्लस u2 डिवाइड बाय v2 माइनस u2। तो जब हम देखते हैं तो इसके साथ आपका ये कैंसिल हो गया, इसके साथ आपका ये कैंसिल हो गया। तो एट द एंड जो रिजल्ट आया, हमारा जो रिजल्ट आया वो आया u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। इसको भी मैं रीअरेंज कर लेता हूं, तो यहां पे आ गया u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज कैसे किया, v2 माइनस v1 इसको उठा के उधर लेके चले गए, इसको इधर ले आया। अब इन दोनों को चीजों को हम क्या देख रहे हैं, तो ये आपकी जो है u1 एंड u2 इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी A एंड बॉडी B बिफोर कोलिजन, एंड v2 एंड v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी A एंड B आफ्टर कोलिजन। अब इसको बोल देंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी A एंड B बिफोर कोलिजन, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये आपकी क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर, ये आपकी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर, इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या है कि दोनों बॉडी पहले एक दूसरे क्लोज आई थी, फिर उनका कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद हुई सेपरेट। तो ये आपकी आ गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये हमने यहां से देखा, ये कहीं ना कहीं हमने दोनों बॉडी की वेलोसिटी को रिलेट कर दिया। क्लियर, तो इसको कहते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो दोनों क्या है, इक्वल। तो अगर मैं क्या कर देता हूं कि यहां से रेशो निकालता हूं, किसकी रेशो, रेशियो किसकी, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। तो अगर मैं यहां से इनकी रेशो निकालता हूं, दिस रेशो को हम बोलेंगे E, और जो E है वो आपका यहां पे है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन,
दिस इज ई इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन। क्लियर, इट इज रिप्रेजेंट बाय ई। क्लियर, अगर आपका कोलिजन होगा परफेक्टली इलास्टिक, इफ collision is perfectly elastic, so in that case your E comes out to be 1. This is your 1 mass question. What is the value of E for perfectly elastic collision? तो अब हमने यहां पे क्या किया है, we will find a relation between the velocity before collision and velocity after collision. तो अगर हम यहां से बॉडी की, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, क्लियर, तो अगर मान लो मैं यहां पे आपका, हमने एक इक्वेशन निकाल ली थी, वो इक्वेशन थी आपकी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये आपकी जो इक्वेशन 1 थी। क्लियर, तो ये इक्वेशन 1 थी। अगर मैं v1 निकालना चाहता हूं, मीन्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन, सॉरी आफ्टर कोलिजन क्या होगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमें पता होंगी, ये हमने निकालनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने ये आपकी एक यहां से एक रिलेशन निकाली थी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो अब मैंने अगर v1 निकालना है तो मैंने यहां से इस v2 को रिमूव करना है। तो इस v2 को यहां से रिमूव करने के लिए इस इक्वेशन में से मैं v2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो v2 वैल्यू जो निकलेगी, इस v1 को उठा के मैं उधर ले जाऊंगा, तो जो v2 आपका होगा, जो आपका v2 होगा, वो आपका जो v2 आएगा, दिस v2 कम्स आउट टू बी u1 माइनस u2 प्लस v1। क्लियर, और इस v2 की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूंगा। तो अब आपका यहां पे आ गया m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस, अब जो ये m2 था इसके साथ यहां पे 3 वैल्यू आई, कौन कौन आएंगी, u1 माइनस u2 प्लस v1। अब मैंने क्या करना है, इधर वाली को सोल्व करना है। तो हेयर कम्स आउट m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1, मीन्स इस ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया और यहां पे आपका आ गया m1 u1 प्लस m2 u2। क्लियर, तो अब हमने इन सबको क्या करना है, वी हैव जस्ट रीअरेंज ऑल दिस। अब इन सबको हमने रीअरेंज करना है, हमने सिर्फ यहां पे v1 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो v1 को हम सिर्फ यहां पे रखेंगे, एक तो v1 की टर्म ये है आपकी और एक v1 की टर्म ये है आपकी। बाकी जो टर्म है ये v1 की नहीं है, इन दोनों को उठा के हम उधर लेके जाएंगे। तो जब इनको मैं उधर उठा के लेके गया तो यहां पे आपका था m1 u1 प्लस m2 u2, यहां से आपका आया, इन दोनों टर्म को हमने हिलाना नहीं है, इनको हमने यहीं पे रखना है। हम इन दोनों टर्म को लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस के m2 u1 प्लस के m2 u2, ये माइनस का था तो उधर जाके प्लस का हो गया। इधर से हमने क्या किया, इन दोनों में से v1 को कॉमन ले तो अंदर आपका आ गया m1 प्लस m2। अब जब मैं यहां देखता हूं, ये है आपका m2 u2 m2 u2। क्लियर, और यहां पे आपका u1 आ जाता है कॉमन, तो मैंने यहां से u1 को ले लिया कॉमन इन दोनों में से, और अंदर आपका आ गया m1 माइनस m2। फिर आपका ये था m2 u2 m2 u2, तो ये आपका बन गया प्लस 2 m2 u2। उधर चल रहा है आपका v1 इंटू में m1 प्लस m2। अब मैंने तो चाहिए v1 की वैल्यू, तो अगर मैं v1 की वैल्यू पूरी टर्म को उठा के नीचे ले आऊंगा, तो यहां पे आपका आ गया u1 इंटू में m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2 डिवाइड बाय किससे डिवाइड करना है हमने, इधर से जो टर्म आई है इससे हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो यहां पे आ जाएगा m1 प्लस m2, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ v1। तो ये आपकी आ गई v1 की वैल्यू। अब अगर हमने v2 निकालना तो क्या करना होगा, तो अगर हमने v2 निकालना है तो जो आपकी ये इक्वेशन थी इसमें से हम v1 की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर,
और उस V1 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में इस V1 की जगह पुट कर देंगे तो इधर सारी आपकी V2 की वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरह से जो आपका V1 आया वो आपका ये आ गया। अब इसके बाद हम कुछ केसेस करते हैं, दैट आर द स्पेशल केसेस रिलेटेड विद दिस, कि जो आपके स्पेशल केस क्या होंगे उनको हमने देखना है। एक बार मैं आपको सीधा V2 की वैल्यू लिख देता हूं कि V2 की वैल्यू क्या होगी। करना वैसी है जैसे हमने V1 की पुट की थी, वहां से हमने V2 को निकाल के पुट किया था, मींस हमने इस इक्वेशन में से V2 की वैल्यू निकाल के पुट की थी। तो अगर मैं इस इक्वेशन में V1 की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करूंगा तब आपकी V2 की वैल्यू आ जाएगी। अब आपका V2 आया क्या है, व्हाट इज द V2 फाइनल रिजल्ट आपका, कि जो V2 आपका फाइनल रिजल्ट था, तो V2 कम्स आउट टू बी 2m1u1, जो आपका V2 होगा वो आएगा आपका 2m1u1 प्लस U2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर आपका आ गया M2 माइनस M1, M2 माइनस M1, नीचे आपका फिर से क्या आएगा M1 प्लस M2। ये तो आई थी V2 जो हमने नहीं निकाली, आपको बताया कि जैसे हमने V1 पुट किया वैसे हम V2 पुट कर सकते हैं। और जो V1 आपका आया था वो आपका आया था 2m2u2, यहां पे हमारा आ गया U1 और अंदर आपका आएगा M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, अब यहां था, यहां आया M1u1, यहां पे आया आपका M2u2, क्लियर। और फिर यहां देखते हैं, यहां पे U2 है, यहां पे आपका U1 है, यहां पे था M2 माइनस M1, यहां पे है M1 माइनस M2, नीचे आपका M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। तो ये आपकी हमने दोनों की वेलोसिटी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। इसके बाद आपके थोड़े से स्पेशल केसेस हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। अब आपका स्पेशल केस ये है कि अगर आपका दोनों बॉडी का मास अगर सेम होगा, मींस इफ m1 इज इक्वल टू m2, कि अगर m1 और m2 दोनों इक्वल है तब आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो बेटा जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो हम v1 और v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होगा आपका फाइनल रिजल्ट, क्लियर। तो फर्स्ट केस आपका ये है कि इफ m1 इज इक्वल टू m2, कि m1 अगर आपका किसके इक्वल होगा, m2 के इक्वल होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, दिस वी विल डिस्कस इन द स्पेशल केसेस। सो देखते हैं क्या आता है आपका रिजल्ट। तो पहले अगर मैं इस इक्वेशन में लिखता हूं v2 क्या होगा आपका, तो अगर m1 और m2 आपके इक्वल है, इफ m1 एंड m2 आर इक्वल, सो सिंपली अगर मैं यहां वैल्यू पुट कर देता हूं m1 और m2 दोनों इक्वल है, मींस हमने यहां पे क्या पुट कर दिया कि आपकी इक्वेशन थी 2m1u1 प्लस u2 इंटू में m1 माइनस m1 डिवाइड बाय, नीचे भी m1 है और नीचे भी m1, मैंने क्या किया m2 की जगह m1 पुट कर दिया, तो ये आपका कैंसिल होकर जीरो आ गया, इस पूरी टर्म को जीरो कर दिया। तो जो v2 आपका यहां से आएगा, अगर मैं यहां पे देखता हूं पुट करने के बाद, ये आपका नीचे आ गया 2m u1 डिवाइड बाय, नीचे आपका आ गया यहां पे 2m1, तो ये 2m1 से 2n आंसर हो गया, तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी u1, कि जो v2 है वो u1 के इक्वल आ गया, जो आपका v2 होगा वो u1 के इक्वल आ गया अगर हम दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं तो। सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं कि सेम उसी की तरह अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे v1 के अंदर दोनों बॉडी के मास को सेम पुट करेंगे तब रिजल्ट क्या, तो नाउ वी विल पुट v1 के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं m1 की जगह, तो ये आता आपका 2, मैंने क्या किया यहाँ पे m2u2 एज चीज रखा, फिर यहाँ पे आपका आया u1, मैंने क्या किया m1 और m2 अगर इक्वल हैं तो मैंने m2 की जगह m2 पुट, m1 की जगह m2 पुट कर दिया, डिवाइड बाय नीचे आपका था m1 प्लस m2, तो ये भी मैंने m2 कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, ये पूरा जीरो। तो फिर से आपका जो v1 आया है वो आपका क्या आएगा, वो आएगा आपका 2m2u2 डिवाइड बाय 2m2, तो 2m2 से 2m2 कैंसिल हो गया, तो आपका जो v1 आया वो आपका आ गया u2 के इक्वल। ये वो केस है अगर दोनों बॉडीज के मास क्या है, सेम है, तो जो v1 होगा u2 होगा और जो v2 होगा वो आपका होगा u1। अगर हम ये कह देते हैं कि इफ
जो सेकंड बॉडी थी वो किस में है, वो है रेस्ट में। तो अगर सेकंड बॉडी रेस्ट में है तो सेकंड बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो u2 थी। तो u2 अगर जीरो हो जाएगा, तो अगर u2 जीरो हो गया तो मैं अगर यहां पे u2 की जगह जीरो, तो v1 कम्स आउट टू बी जीरो। क्लियर। तो ये आपका एक और पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया। आगे हम डिस्कस करेंगे दो केसेस कि इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 मींस जो बॉडी फर्स्ट है उसका मास बॉडी सेकंड से बहुत ज्यादा है। और दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका m2 इज ग्रेटर देन m1, कि जो बॉडी आपकी सेकंड है उसका मास पहली बॉडी से बहुत ज्यादा है। दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। So now this is over for today. So see it, complete it. If any doubt, you can ask to me on my WhatsApp number. So वीडियो पूरा देखना है, देखने के बाद कमेंट करना है। अगर कोई डाउट है तो उसको आप लोगों ने बताना है ताकि इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल solve it. So thank you. This is over for today.